তো মহাপ্রধান জগন্নাথ কমিটির আমার প্রণাম জানাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বভারতীয় ভারতীয় সভানেত্রী বহিন কুমারী মায়াবতীজিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই মাসিক সভায় উপস্থিত আমাদের সেন্ট্রাল রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় এক্স মিনিস্টার মাননীয় ধরমবীর সিং অশোকজি এবং এক্স এমএলসি মানে এমএলএ মাননীয় আতার সিং রাওজি, আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের স্টেট কোঅর্ডিনেটর, রাজ্য পদাধিকারী এবং সকলকে আমার বাকি সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের যে মাসিক সভা সেই সভা আজকে শুরু করছি। তো শুরুর প্রথমে আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি, অনেক দিন তো রাখছি যে আপনারা যারা জেলার সভাপতি আছেন তাদেরকে বারবার বলছি যে আপনাদের যে বিধানসভাগুলো আছে সেই বিধানসভা কমিটিগুলো জমা দেওয়ার কথা বলছি, কিন্তু আপনারা সেই বিধানসভার যে কমিটি যে কটাই বানান, সে একটা হোক, দুটো হোক, পাঁচটা হোক, দশটা, সেগুলো জমা দেওয়ার কথা এবং তাদেরকে নিয়ে বসার কথা বারবার বলা হচ্ছে, কিন্তু আপনারা কর্ণপাত করছেন না। তো আগামী দিনে যদি এরকম হয় তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে আমার অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের কমিটি তৈরি করার জন্য। যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা আবার এর আগে কোনো সময় বলিনি, এবার বলছি। এরপরে আমি পরবর্তী ব্যবস্থা আমি নেব যদি বিধানসভা কমিটিগুলো আপনারা না তৈরি করে জমা না দেন। কারণ ওখান থেকে কাউন্সিলের যে কটা বিধানসভা হয়েছে, কটা হয়েছে সেক্টর, তো ঠিক আছে, পরবর্তী সেক্টর ঠিক আছে, মানুষের বিধানসভাগুলো তো আমাদের যেরকম আগে ছিল এখনও সেইভাবে থাকা উচিত, কারণ তার কে কী আছে না আছে সেই বিস্তারিত আমাদের রাজ্যের অফিসে থাকা উচিত। সেই ব্যাপারে যদি আপনারা বিশেষ করে ধ্যান না দেন তাহলে আমি পরবর্তী সময় আমাকে বাধ্য হবে রাজ্য সভাপতি এসে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপনারা বাধ্য করবেন না, আশা রাখছি বাধ্য করবেন না। দ্বিতীয় অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে আর মেইন হচ্ছে মান্থলি সবার ব্যাপারে যে আমাদের স্টেটের যে কালেকশন বা আপনাদের যে অর্গানাইজেশন বা যে অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে কী কতটুকু কী করছে সেই ব্যাপারে রিপোর্টিং করার কথা, যে কতটা কে গেছে। আর হচ্ছে 14 এপ্রিল আমার তরফ থেকে, কেন প্রতি বছর আমরা, আজকে না, প্রতি বছর আমরা রাজ্যের তরফ থেকে আমরা শিয়ালদা থেকে পদযাত্রা করে বাবা সাহেবের যে রেড রোড মূর্তি, সেই মূর্তিটা আমরা মাল্যদান করি। এটা আজকের প্রোগ্রাম না, শুধু মাঝখানে মানে আপনার হচ্ছে 20, 21, 22 এই 3 বছর বাদ গেছে করোনার কারণে, কারণ সে পারমিশন পাওয়া যাচ্ছিল না। তো সেই জন্য চলে যাওয়ার পরে গতবার আবার শুরু করেছি। তো আমার তরফ থেকে সে প্রোগ্রাম, এটা কোনো ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে প্রোগ্রাম না, এটা স্টেট প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে প্রোগ্রাম। শুধু স্টেটের প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে স্টেটের প্রোগ্রাম। জেলায় যারা করবেন তারা জেলায় করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। যারা পারবেন তারা আমাদের শিয়ালদায় 12টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। যদি কেউ না পারেন জেলায় করছেন তাদের কোনো আমাদের আপত্তি নেই, বিধানসভা যদি করেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। যারা পারবে তারা যেন 12টার মধ্যে শিয়ালদাতে পৌঁছায়। সম্ভবত 1:15 বা 1টা, বেশি হলে 1টার সময় আমরা স্টার্ট করব, আর 2টোর মধ্যে আমরা পদযাত্রা করে বাবা সাহেবের মূর্তিতে মাল্যদান করে ফিরে আসবো। আর জেলা বা বিধানসভা যদি পারেন বিকালে বা যখন যেরকম পারেন সেরকম আপনারা করবেন সবাইকে। আর হচ্ছে আমাদের হিসাব দেওয়ার পরে জেলা যারা আসছেন তাদের রিপোর্টিংটা আপনারা তো আমাদের যে মেইন এই জায়গাটা, আর বাকিগতভাবে তো একই কথা বারবার বলে তো আপনারা শুনছেন। যখন বিধানসভা কমিটিগুলি জমা, তাদের সঙ্গে এই কাটার ইস্তেমাল হচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমরা মিশনারি ওয়ার্কার আমাদের হচ্ছে যে যতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারে সেইটা হচ্ছে আমাদের কাছে মেইন। কেউ বেশি করতে পারে, কেউ কম করতে পারে, কেউ অল্প করলো, কেউ বেশি করলো, প্রত্যেকের কাজ হচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা হচ্ছে যে আমরা এই মুভমেন্টটা কেন করছি সেটা হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য না, আমাদের সন্তানদের জন্য। আমরা করছি পরবর্তী জেনারেশন, মানে যেটাকে বলে আমার নাতি। যেমন আমার দাদু আমার দাদুর এবং আশা করি সবারই দাদু, বেশিরভাগ দাদু, আমাদের 2-4 জন বাদ দিয়ে বেশিরভাগ আমার বয়সী যারা আছে তাদের দাদুরা লিঙ্কি করেও অথবা গামছা পরতো বেশি সময়, ঠিক আছে, বেশি সময়। আর ধুতি থাকলে সেটা অর্ধেক ছিঁড়ে পড়তো, কারণ অভাবের কারণে, ঠিক আছে।
এই দেশের সামাজিক ব্যবস্থার কারণে তারা এটা করতো, তারা শখে করতো না, এবং বেশিরভাগ হচ্ছে গামছা পরে বেশি সময় কাটাতো। তো কিন্তু পরবর্তী সময় সে বলেন, পরে উঠে গুরুচার সঙ্গে বলেন, জ্যোতিরাও ফুলে বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকরের ফলে আমার বাবা ধুতি পরতো, পাঞ্জাবি পরতো, ভালো ভদ্র, এবং পাঞ্জামা পরা শুরু করেছে। হয়তো আমার বাবা যে বয়সী, সেই বয়সী অনেকে 2-4 তো কোট প্যান্ট পরতো, কিন্তু তার খুব 2-4 বেশিরভাগ হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার দাদু গামছা পরতো বা ধুতি অর্ধেক করে ছিঁড়ে পড়তো। আমার ঠাকুমা বা আমার দিদিমা কী করতেন, ব্লাউজ জীবনে কোনোদিন মনে হয় চোখে দেখিনি, ছায়া চোখে দেখিনি, শাড়িও কম করে পরতো, ঠিক আছে, 2-1টা রাখতো। কিন্তু তার পরবর্তী যে জেনারেশন, বাবা বা আমার জেনারেশনে, তখন কিন্তু তারা ভালোভাবে কমসে কম অতখানি ছিল না। তার পরবর্তী আমরা কিন্তু কোট প্যান্ট পরা শুরু করেছি। তো এই যে আমরা কোট প্যান্ট পরা শুরু করি মাত্র 2টো জেনারেশনে পড়ে, মাত্র 2টো জেনারেশন। দাদুর জেনারেশন ছিল না, বাবার জেনারেশন, আমার জেনারেশন। তো আমরা যদি মনে করি আমরা অনেক কিছু পেয়ে গেছি, তাহলে ভুল ধারণা। তো এটা আমাদের যোগ্যতা পাইনি, এটা পেয়েছি হচ্ছে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন, জ্যোতিরাও ফুলে বলেন, সাহুজি মহারাজ বলেন, তার চেয়ে বড় হচ্ছে ইংরেজ সরকারের কারণে, তারপরে হচ্ছে বাবা সাহেব কারণে আমরা এইটাই যে বেস্ট। তো এইটাকে নষ্ট করার জন্য, এই যে আমরা যে কোট প্যান্ট করছি, এটাকে শেষ করার জন্য এই দেশের যারা জাতিবাদী, যারা আমার দাদুকে লেংটি করে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করেছিল, তারাই কিন্তু আমার নাতিকে করবে। যদি এই ব্যবস্থাটা উঠে যায়, রিজার্ভেশন বিভিন্ন যে সুযোগ সুবিধা আমাদের উপরে তোলার জন্য, এটা উঠে গেলে পরে আমার নাতি আবার সেই গামছা পরবে। তো আমরা যে মুভমেন্টটা যে করছি বা বঞ্জি বা কানশ্যামজি করছে, সেটা হচ্ছে কানশ্যামজির জন্য, কানশ্যামজি মুভমেন্ট করেনি বা এই জেনারেশনের জন্য করেনি, নেক্সট জেনারেশনের জন্য করে গেছেন। যে পরবর্তী হয়তো আমাদের জীবন ভালো চলে যাবে, আমাদের ছেলের জীবন মোটামুটি চলে যাবে, খুব একটা কষ্ট হবে। কেন, আমি ধরেন চাকরি করি, আমার রিটায়ার করার পরে কেউ 1 কোটি পাবে, কেউ 50 লাখ পাবে, কেউ 60 লাখ পাবে, কেউ 40 লাখ পাবে। কিছু জমি বাড়ি করা আছে, তাতে হয়তো বিক্রি করে ছেলের জীবন চলে যাবে, কিন্তু নাতির জীবন যাবে না। তো সেই জন্য এই যে মুভমেন্টটা আমরা আজকে করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য না, আমাদের ছেলেদের জন্য না, এইটা হচ্ছে আমাদের নাতির জন্য। সেই মিশনারি কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অর্গানাইজেশন যদি আমরা মজবুত করতে না পারি, তাহলে আমরা কিছুই করতে পারবো না। আমরা হাওয়া হয়ে অনেক কিছু করতে পারবো, অনেক ভাষণ দিতে পারবো, অনেক বড় বড় কথা বলবো, অর্গানাইজেশন না হলে হবে না। সেই জন্য আমাদের বুথ লেভেল পর্যন্ত যেতে হবে, কিন্তু আমাদের সেই স্ট্রেন্থ এখন প্রয়োজন। তবে আমাদের বিধানসভা, সব বিধানসভা পারবো না, আমরা যেগুলো বিধানসভায় পারবো সেগুলো বিধানসভা কমিটি করলে যা 4-5 জন যদি থেকে আমরা যদি মজবুত করতে পারি, তাহলে সেখান থেকে আরও 10 জনকে আনা যাবে, পরবর্তী সেক্টরগুলো হবে। আর প্রত্যেক বিধানসভার যাতে কটা সেক্টর, জেলা সভাপতি বলছি, আপনারা সেই বিধানসভায় কটা সেক্টর বানাচ্ছেন তার লিস্ট তৈরি করবেন। এখন তো কালেকশন নাই, এখন অন্য কিছু, এখন অর্গানাইজেশন কাজ, এখন অর্গানাইজেশন কাজ 1 বছর লোকসভার সময় আছে। সেই জন্য আপনারা প্রত্যেক বিধানসভায় কতগুলো সেক্টর, যে আমি এই বিধানসভায় 10টা 20টা সেক্টর, 15টা সেক্টর ভাগ করবেন, এবং কোন বুথ নিয়ে, কটা বুথ নিয়ে করি, বুথ নাম্বার কত, এইগুলো নিয়ে ভাগ করবেন। তার সঙ্গে বিধানসভা কমিটি করবেন, এবং বিধানসভা কমিটিকে সেই সেক্টরগুলো জানাবেন যে এই করবা, সেক্টরে ইনচার্জ, সেক্টরের প্রেসিডেন্ট, সেক্টর এগুলো বানান, যে কটা বানান, তারপর হচ্ছে বুথে রয়েছে। তো এই আবেদন রাখছি আর 14 আর আমাদের যেটা হিসাব, আজকে আমাদের গত মাসের যে কালেকশন এবং তার হিসাব আপনারা ইন টোটো আপনাদের আমাদের যারা তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে আমাদের এক্স এমএলসি আতার সিংজি এবং এক্স মিনিস্টার আমাদের ধর্মেশ সিংজি আপনাদের সামনে তাদের যে বক্তব্য সেটা আমাদের এমএলসি মাননীয় আতার সিং রাও, তিনি মিরাটে থাকেন, তারা আমাদের কেন্দ্রীয় স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় আতার সিং রাও আপনাদের সামনে मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व को मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ, और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष, जिनमें खासकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद दयानंद जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, बामसेर, DS4,
तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग तो बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बहुजन समाज पार्टी के काउंसिलर और भारत के लगभग सभी स्टेटों में प्रभारी रह चुके, वर्तमान में वेस्ट बंगाल उड़ीसा के सम्मानित प्रभारी और पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी हमारे सरपरस्त आदरणीय धर्मवीर अशोक साहब और आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोहर लाल जी, सभी हमारे प्रदेश के सभी कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मेरे समक्ष बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से सिखाइए। सम्मानित साथियों के जैसा कि विदित है कि फर्स्ट वीक में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर यानी कि महीने के प्रथम सप्ताह में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हम लोग मासिक बैठक और समीक्षा के रूप में हम लोग करते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे पूरे महीने का लेखा जोखा हमने जो आदरणीय बहन जी की तरफ से आदेश आए वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी तक, प्रदेश वाले जिले से विधानसभा से नीचे तक सेक्टर और बूथ तक पहुंचता है। जो काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बताती हैं उसका लेखा जोखा आज के यानी कि जिस दिन मासिक बैठक होती है उसमें आप लोगों द्वारा दिया जाता है। मसलन जैसे सदस्यता है या बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी कहाँ तक बनी, जिला कमेटी कंप्लीट हुई नहीं, तो उसके आगे सब चीज़ें ये आज समीक्षा बैठक में सम्मानित साथियों किया जाता है, समीक्षा की जाती है। दूसरा, साथ ही साथ जो भी हमारे महापुरुषों के से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, वैसे हमारे 5 नेशनल एक तरीके से कार्यक्रम होते हैं। बाबा साहब का जन्मदिन और उनका परिनिर्वाण दिवस, माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन, उनका परिनिर्वाण दिवस, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मनाने का काम करती है। और ऐसा ही आगे आप सब जानते हैं कि बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिवस 14 अप्रैल को पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर सम्मानित साथियों मनाया जाता है। और आज उसी की तैयारी के लिए मेन जो सब्जेक्ट है आज वही है, तो जिलेवार ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, अध्यक्ष जी ने बताया भी। और उसमें मुख्य जिन की ड्यूटी लगेगी वो अध्यक्ष जी ने वो बता देंगे आपको कौन कौन वहाँ मुख्य अतिथि सम्मानित साथी होंगे। तो हम सब लोगों को बड़े धूमधाम से अपने भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं और मनानी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए कि उन्होंने पूरा अपना जीवन इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर और संकट बोध पारसी के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया। और तो और उन्होंने अपने इस पवित्र मूवमेंट में, इस पवित्र हवन में अपने बच्चों के प्राणों की आहुति देने का भी काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर और संकट बोध पारसी के लिए इस देश में तमाम पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी है और बहुत सारी तृणमूल कांग्रेस है, तमाम पार्टियां इस देश और प्रदेश के अंदर हैं। लेकिन अगर किसी ने भी इस देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर और संकट बोध पारसी यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों के लिए सम्मानित साथी कुछ नहीं किया। इन लोगों ने हम लोगों की वोटर सपोर्ट तो ली, ये वोटर सपोर्ट से ली और वोट सपोर्ट लेकर ही शासन सत्ता में आए। लेकिन इन लोगों ने अगर बढ़ाने का काम किया तो अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, या जो इनके अपने पूंजीपति जो सहयोगी होते हैं उनको बढ़ाने का सम्मानित साथी काम किया। और इस देश में अगर कोई पार्टी केवल इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूरों के लिए उनके राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा सम्मानित साथियों को। और तो जो जिस सब्जेक्ट में आज मीटिंग में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म जयंती में 14 तारीख में मनानी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम लोग इतने सम्मान के साथ यहाँ स्टेट कार्यालय में
हम लोग सम्मान के साथ, ना आप लोग कुर्सी पर बैठे होते, ना हमारे आदरणीय मंत्री जी आज मुख्य अतिथि के रूप में और जो नेशनल प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि स्टेट के प्रेसिडेंट मनोज अबलादार भी शायद क्या नाम बैठे होते। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन संघर्ष से हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, हम लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, हम लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिलवाया। जैसे शिक्षा का अधिकार दिलाने की लड़ाई हमारे ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले स्कूल भी खोला था, माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए, और आगे की लड़ाई परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लड़ी, माननीय काशीराम साहब ने लड़ी, और अब आदरणीय बहन कुमारी निवाती जी उस उद्देश्य को, उस मूवमेंट को सम्मानित साथियों आगे लेकर चल रही है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। सम्मानित साथियों, जब देश गुलाम था, जब हम लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर हमें अच्छा पहनना, अच्छा खाने की तो आज़ादी थी ही नहीं, स्कूल जाने की, पढ़ने लिखने की तो हम लोगों को आज़ादी थी नहीं, हम लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने तक की भी सम्मानित साथियों आज़ादी नहीं थी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 1927 में महान सरोवर, जिसको हम चापदार तालाब कहते हैं, वहाँ पर आंदोलन कर और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस एंड पार्टी के लोगों ने ये, क्योंकि ऐसी परंपरा थी कि वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यानी शूद्र समाज के, आदिवासी समाज के लोग सार्वजनिक स्थलों पर पानी नहीं पी सकते थे। हमारी बस्तियाँ जो होती थी वहाँ होती थी, जब बस्तियों का मलमूत्र निकलता या मरे हुए जानवर डाले जाते थे, वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जीवन यापन किया। तो सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार सबसे पहले अगर किसी ने दिलवाया तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सम्मानित साथी 1927 में आंदोलन करके चापदार तालाब पे, और वहाँ लाठीचार्ज भी आपको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कह दिया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आए रूढ़िवाद एक व्यवस्था को तोड़ने जा रहे हैं, और यहाँ संघर्ष परिवर्तन जातीय संघर्ष हो सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर चापदार तालाब पर इनका ये पानी पीने के लिए आंदोलित होकर वहाँ जा रहे हैं, अगर इन्होंने वहाँ पानी पिया तो जातीय संघर्ष हो सकता है। तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने जैसे ही वहाँ तालाब में हाथ डाल कर ऐसे करके पानी पिया तो बाबा साहब के ऊपर लाठीचार्ज, समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हाथ में चोट लगी, सर में चोट लगी, लेकिन धन्य परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जिन्होंने लाठी खाकर, अपना हाथ में चोट खाकर, सर में चोट खाकर हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलवाने का सम्मानित साथियों काम किया। और उस वक्त ऐसे हालात थे, उस वक्त ऐसे हालात थे, वहाँ कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े तो पानी पी सकते थे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यानी शूद्र समाज के लोग वहाँ सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानित साथियों पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने ऐसी अनेकों लड़ाई सम्मानित साथी लड़ी। हालांकि बाबा साहब कभी मंदिर नहीं गए, उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन आडंबर का विरोध उन्होंने हमेशा किया। और उन्होंने ये दिखाने के लिए हम इस देश के मूल निवासी, हमारा हर जगह हमारा अधिकार है, तो नासिक के कालाराम मंदिर में 1930 में उन्होंने वहाँ पर आंदोलन करके नासिक के जो है कालाराम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करने की परमिशन, मतलब उनका ये नहीं था कि उन्होंने ये दिखाना था कि आप ही का अधिकार नहीं है, ईश्वर सबके हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकार हर क्षेत्र में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर हम लोगों को आगे बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम किया। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वोट डालने का अधिकार आप सब लोग, अधिकांश लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को, कि जैसे एक आगे जैसे और यानी कि अपर कास्ट के लोगों को जैसे इनको पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, तो हमारे समाज के लोगों को भी ये सब अधिकार होने चाहिए। गुलाम भारत में सम्मानित साथी हम लोगों को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उस वक्त ब्रिटेन से हिंदुस्तान को गवर्न किया जाता था, ब्रिटेन की सांसद से हिंदुस्तान को चलाया जाया करता था। तो ब्रिटेन के सांसद उस वक्त से मैकडोनाल्ड थे, उनके समय में 3 गोल्ड सम्मेलन सम्मानित साथी हुए 1930, 31 और 32 में। बाबा साहब ने उनके सामने रखा था कैसे इन लोगों को, पैसे वाले सामंतवादी लोगों को हर सार्वजनिक स्थलों पर हर तरह के अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, तो हमारे लोगों को भी वोट का अधिकार होना चाहिए। तो वहाँ तथाकथित महात्मा गांधी, कांग्रेस के मुखिया महात्मा गांधी ने ये किया कि माय लॉर्ड के वोट का अधिकार केवल उसको होना चाहिए जो कम से कम 4 आने का लगान देता हो या जो मैट्रिक पास हो। बाबा साहब ने तर्कसंगत बात करके, तो बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब ने तर्कसंगत बात रखी कि माय लॉर्ड जब मेरे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार तक नहीं है तो मेरे लोग मैट्रिक कहाँ से पास होंगे, स्कूल जाने तक का अधिकार नहीं है, और जब मेरे लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है
तो 4 आने का लगान और किसको और क्यों देने का सम्मानित साथियों काम करेंगे। बाबा साहब की बात से प्रभावित होकर राम से मैकडोनाल्ड ने हम लोगों को 18 अगस्त 1932 को हमें वोट डालने का सम्मानित साथियों अधिकार दिया। हमें रिजर्वेशन सबसे पहले मिला। हमें रिजर्वेशन मिला तो 18 अगस्त 1932 को कौम ने बाबा साहब की बातों से प्रभावित होकर बाबा साहब ने इस तरीके की तर्कसंगत बात रखी कि वहां की संसद को बाबा साहब के सामने झुकना पड़ा। राम से मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड के नाम से हम लोगों को एक अध्यादेश जारी यहाँ पर किया और हम लोगों को वोट डालने का अधिकार सम्मानित साथी हुआ। और उस वोट डालने के अधिकार के साथ साथ हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। यानी आज जो लोग भी आज पार्षद हैं, नगर जो आपके नगर प्रमुख हैं, यानी कि मेयर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर इस देन में ये सब देन है, इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों के लिए, इस देश में गरीब गुरबों के लिए अगर विधायक सांसद बनाने की ताकत देने का काम किसी शख्स ने किया तो उस शख्सियत का नाम है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। किसी और ने सम्मानित साथियों ये ताकत देने का काम सम्मानित साथियों नहीं किया। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ सम्मान के साथ जो आप कुर्सी ग्रहण करके हम प्रदेश स्तरीय बैठक में भागीदारी कर रही हैं तो ये देन भी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की है। देश की आज़ादी से पहले या भारतीय संविधान लागू होने से पहले केवल आपको चूल्हा व चौका तक सीमित रखा जाता था। चूल्हा चौका से मतलब केवल आप घर में खाना बनाने का काम करती थी, साफ सफाई करने का काम करती थी, या फिर आपको यानी कि परिवार बढ़ाने के लिए जब आपका सम्मान जब थोड़ा ज्यादा होता था जब आप बेटा पैदा कर देती थी। अगर कहीं 2 बेटी पैदा हो गई एक के बाद एक तो औरत हो गया औरत ही, यानी आपकी सास आपकी ननद ही आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने लगती थी। संविधान बनने के बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने महिला को पुरुष के बराबर किया। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला आज पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का सम्मानित साथियों काम कर रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि कल्पना चावला अगर सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, श्रीमती पाटिल देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी, ममता बनर्जी, जयललिता और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो वो देन किसी देवी देवता की नहीं, वो देन किसी और की नहीं, वो देन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की है। और साथ ही साथ आज जो देश की राष्ट्रपति जो प्रथम महिला है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है, अगर वो राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान है तो वो देन केवल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और उनके बनाए संविधान की है। तो सम्मानित साथियों में क्यों ना हम लोगों को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मदिन हम लोगों को भगवान के रूप में उनकी जन्म जयंती जैसे और लोग अपने उनको जिनको भी क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम किसी धर्म किसी जाति का विरोध नहीं करते, जैसे और लोग धूमधाम से अपने पूर्वजों का अपने देवी देवताओं का जो है जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं तो हम लोगों को भी अपने भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और हमें असली रखने में सम्मानित साथियों फर्क करना चाहिए। तो हमारे आजकल नौजवान साथी, हमारे बहनें, कुछ लोग भटक जाते हैं, नकली बाबाओं के चक्कर में लग जाते हैं और वो नकली बाबा उन षड्यंत्र करके चालाकी से उनके पैसे हड़प लेते हैं, जमीन जायदाद हड़प लेते हैं और सम्मानित साथियों मौका लगने पर उनकी आबरू से भी खेलने का सम्मानित साथियों काम करते हैं। सम्मानित साथियों जब तक भारतीय संविधान नहीं बनाता किसी भी धर्म किसी भी जाति का भी बाबा किसी भी बहन बेटी की असमत लूट लिया करता था, किसी की संपत्ति हड़प लिया करता था तो उसके लिए कोई कानून में सजा, किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 के बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जब से संविधान बनाया, मैं तो ये कहूंगा कि वो केवल भारतीय संविधान नहीं, इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी का अगर कोई अधिकार ग्रंथ है, भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी किताबें, हम सबका सम्मान करते हैं। पवित्र बाइबल है, पवित्र कुरान है, गुरु ग्रंथ है, रामायण है, भगवत गीता है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन इस देश में किसी भी किताब में इस देश में रहने वाले दलित, किसान, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी महिलाओं को बराबर का अधिकार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अगर अधिकार दिलाने का काम किया तो हमारी पवित्र किताब भारतीय संविधान ने किया। और मैं तो ये कहूंगा वो केवल भारतीय संविधान नहीं, इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी का अधिकार ग्रंथ है, जहां पर हम पूजा अर्चना करते हैं। जिस स्थान पर भी जिस भी पवित्र किताब को आप रखते हो तो मेरा ये मानना आप लोगों से अनुरोध है
कि हमें अपने अधिकार ग्रंथ भारतीय संविधान को भी पूजा स्थल पर रखकर उनका अनुसरण करना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए, जिसमें हमारे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हमें हर तरह का अधिकार देने का सम्मानित साथियों काम किया। और हम लोगों को बनाना चाहिए। मैंने जब भी आपको बताया कि बहुत सारे नकली बाबा और ऐसे बाबा जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर दुनिया भर के आश्रम बनाए, दुनिया भर के प्रॉपर्टी बनाई, बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाकर लोगों की जमीनें हड़पने का काम किया और उन्होंने ही राम के नाम को बदनाम करने का सम्मानित साथियों काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जब तक नहीं था, किसी बाबा के साथ किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, ये भारतीय संविधान के हिसाब से सबसे पहले कानून की गिरफ्त में कौन आए? जिनके कानून की गिरफ्त में कौन आए? आसाराम, जिनके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब पैर छूते थे। लेकिन जब वो कानून की गिरफ्त में आए, यानी भारतीय संविधान के हिसाब से जब उनके हिसाब कानूनी कार्रवाई हुई, तो आज तक जेल के सलाखों के सम्मानित साथियों पीछे। दूसरे नंबर पर कौन गए? रामपाल। और तीसरे नंबर पर भारतीय संविधान के हिसाब से जो उन्होंने कर्म किए थे, जेल भेजने की ताकत का कहाँ? भारतीय संविधान का आपने नजारा देखा, यानी राम रहीम, ना उन्होंने राम को छोड़ा ना रहीम को छोड़ा। तो सम्मानित साथियों, संविधान में इतनी बड़ी ताकत है, जिन लोगों के सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, परम पूज्य, वो किसके कारण जेल गए? हमारे भगवान, हमारे असली बाबा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान के द्वारा ये सारे नकली बाबा जेल के सलाखों के सम्मानित साथियों पीछे गए। तो मैं हर सूरत में अपने भगवान की जन्म जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मनानी चाहिए और हम लोगों को, सब लोगों को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। सम्मानित साथियों, जैसे इन लोगों के हमने पहले ही कहा कि हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, क्योंकि हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। ना तो हम नास्तिक हैं, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लोग, ना तो हम नास्तिक हैं ना हम आस्तिक हैं, हम लोग वास्तविक हैं। जो वास्तविकता होती है उसी को सामने रखकर सम्मानित साथियों बात करते हैं। हम कभी इधर उधर की माइनस प्लस कोई बात सम्मानित साथियों नहीं करते। जो वास्तविकता है, जो प्रैक्टिकल बात है, उसी को सामने रखकर सम्मानित साथियों, अभी ये जो जितना भी डांबर लोगों ने फैला रखा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हम उसको खत्म करने का सम्मानित साथियों, जो हमारे संत महापुरुष करते आए हैं, हम वही बताने का, उसी बात को, उसी लाइन को आगे बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम करते हैं। तो मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है, जैसे हम लोग इन लोगों के इन लोगों आइडियोलॉजी बढ़ाने के लिए ये लोग समय समय पर कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। ये लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं पे सोना दान करते हैं, कहीं चांदी दान करते हैं, कहीं नगद पैसा दान करते हैं, कोई जमीन ही दान कर देता है। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है श्री हनुमान मंदिर, तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी होती है, लोग वहाँ खूब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं लिखा होता है श्री शिव पार्वती मंदिर, वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति होती है, लोग वहाँ पर माथा टेकते हैं, बहुत सारा पैसा, धन दौलत सब अर्पित करते हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लिखा होता है श्री राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर लोग जो उनको मानने वाले खूब आराम से, खूब ढंग से वहाँ पर जो भी उनको देना होता है वो दान देते हैं, अर्पित जो भी है अपने भगवान को अर्पित करते हैं। सम्मानित साथियों, तो जहाँ पर भी कहीं लिखा हो बहुजन समाज पार्टी, तो वहां आप जाके देखेंगे, जैसे मैं यहाँ एक पवित्र मंदिर यानी बहुजन समाज पार्टी ने लिखा होगा, तो बहुजन समाज पार्टी का मंदिर होता है हमारा, वहां पर फोटो मिलेगा जो भगवान तथागत का, ज्योतिबा फूले जी का, माता सावित्रीबाई फूले जी का, संतपति साहू जी महाराज का, नारायण गुरु जी का, बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम साहब का और जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी नाथ जी का। तो ये जो पार्टी के राज, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय हैं, ये हमारे मंदिर हैं और हमें भी यहाँ पर इनको चलाने के लिए, इनके रखरखाव के लिए हमें जो स्टेट मेंटेनेंस के रूप में हर महीने जो भी हम आप लोगों को आदेश ऊपर से आया, हर सभी लोगों को मेंटेनेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सब लोगों को ईमानदारी से मेंटेनेंस, यानी कि इस पवित्र कार्यालय को आगे चलाने के लिए, अपने संतों महापुरुषों की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमें सब लोगों को यहाँ स्टेट मेंटेनेंस के रूप में जो भी निर्धारित शुल्क है उसको हर महीने जमा करना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज सर्विस नौकरी पे हैं, जो लोग आज व्यापार कर रहे हैं, जो मान सम्मान के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो देन किसी और की नहीं, हमारे संतों महापुरुषों की, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, सभी हमारे संतों महापुरुषों की देन है। नहीं तो हमारे आगे झाड़ी और पीछे, हमारे आगे हांडी और पीछे झाड़ बंधा था। सम्मानित साथी, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हम लोग सार्वजनिक स्थलों पर भी नहीं निकल सकते थे। तो जिन संतों महापुरुषों ने हम लोगों के लिए रात दिन एक किए और पूरा जीवन हम लोगों के ऊपर निछावर कर दिया,
तो हम लोगों को भी फर्ज बनता है उनकी आइडियोलॉजी को बढ़ाएं, हम उनका मान सम्मान करें, उनकी जन्म जयंती पर हम धूमधाम से हम लोगों को बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम करना चाहिए। और ये हमारे हित की बात है, क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में रात दिन एक करके लिखा था, अगर हम लोग ताकत पैदा नहीं कर पाए, बहुजन समाज पार्टी को नहीं बढ़ा पाए, तो आने वाले कल में संविधान खत्म कर देंगे। धीरे धीरे इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, प्राइवेट सेक्टरों में भी लोगों ने बंदी से दिखाया दी है, और ये लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, पूरे देश को बेचने का काम करेंगे। इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, इस देश में इन मनवादी ताकतों को कोई टक्कर दे सकता है, तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी और वो नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी, सम्मानित साथियों, दूसरा और कोई नहीं। तो हम लोगों को जो बहन जी का आदेश समय समय पर हम लोगों को मिलता है, हमें समयबद्ध तरीके से समय पर उसको पूरा करना चाहिए, और बहन जी के आदेशों को मानकर उनको पूरा करना चाहिए। और जो भी आदेश बहन जी द्वारा, चाहे हमारे आदरणीय द्रव्य अशोक जी हो या हम अपनी तरफ से कोई आदेश आप लोगों को अध्यक्ष जी हम लोग नहीं देते हैं। जो आदरणीय बहन जी का निर्देश होता है वो हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो आदेश बहन जी के हम लोगों को तो केवल शब्द होते हैं, जो बहन जी कहती हैं वो आप लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारा अगला बड़ा कार्यक्रम 14 अप्रैल में जो है, हमें सब लोगों को जो है कार्यक्रम बाबा साहब की जन्म जयंती का, अपने भगवान का हमें जन्म जयंती का कार्यक्रम सम्मानित साथियों बड़े धूमधाम से मनाने का काम करना है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया, और समय समय पर कांग्रेस एंड पार्टी के लोगों ने, तमाम मनुवादी सामंतवादी पार्टियों ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा के राह में रोड़े अटकाने का काम किया। सम्मानित साथियों, में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, एक हमारे ही शूद्र समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग, भले ही वो बाबा साहब से राजनीतिक रूप से उनका दर्शन बढ़ाओ, बड़े उप प्रधानमंत्री रहे हों, रेल मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर रहे हों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भले ही कानून मंत्री रहे, लेकिन उन लोगों बाबा साहब ने उन्होंने केवल उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, अपने व्यापार को बढ़ाने का काम किया, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बहुत पार्श्व, गरीब गुरबों के लिए, महिलाओं के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी। और सम्मानित साथियों, अपने आप को पूरा इस मूवमेंट में झुलसाने का सम्मानित साथियों काम किया, और एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिनको भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं हमें देके गए। जब तक हमारे पास ये हथियार है, हमसे कोई भी राजनीतिक सामाजिक अधिकार नहीं छीन सकता। सम्मानित साथियों, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के राह में रोड़े अटकाने वालों, समय समय पर बाबा साहब को अपमानित करने वालों, अरे कल जब इतिहास के पन्नों को उल्टाया पलटा जाएगा, कल कभी भी इतिहास को पन्नों को उल्टाया पलटा जाएगा, तुम्हारा नाम तो जाने अनजाने में आएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा साथियों, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है, हमें सम्मानित साथियों बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से हम लोगों को मनाना चाहिए, और यही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन होंगे। सम्मानित साथियों, अंत में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराई से आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमस्कार। সাথী, এখন আপনাদের সামনে আমাদের যে বক্তব্য যেটা সেটা প্রাক্তন কেন্দ্রমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় ঠিক আছে, আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখছি। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज हर महीने की तरह इस महीने की मासिक मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए प्रदेश के प्रभारी और MLC रहे आदरणीय अतः सिंह राव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष
शांति और इस मीटिंग में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के सम्मानित महिलाएं, दोस्तों, विषय तो कुछ भी नहीं है आज। आप में से कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी है, पिछले महीने कितने दिन कितने गांव में गए, कितनी मीटिंग ली, यदि किसी के पास कोई रिकॉर्ड है तो मुझे दिखा सकते हैं। किसी के भी पास बाद में नहीं, अब समय की बात होती है, वो तो अचानक आ जाता है दिमाग में सवाल, तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये मीटिंग सिर्फ भाषण के लिए नहीं होती, बल्कि ये मीटिंग कुछ करने के लिए होती है, कुछ सीखने के लिए होती है, कुछ सिखाने के लिए होती है। हम लोग जब पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोग बहन जी के सामने जाते हैं तो वहाँ उनकी एक एक बात को हम लिखते हैं और उन बातों को फिर प्रदेश में जाकर बताते हैं, उसमें कुछ अपना भी मिला देते हैं और आपका काम होता है उसे जिले पर लागू करना। जिले वालों का काम होता है विधानसभा में लागू करना, विधानसभा के लोगों का काम होता है गांव-गांव में पहुंचाना। हमारा पास मीडिया नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है और हमारी बातों को कोई चैनल वाला देता नहीं, तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? अपने द्वारा। और जब बात पहुंचेगी तो उसका कुछ असर भी होगा। अब हम वहां सुन के आए और चुप अपने घर बैठ गए, या हमने यहाँ बोला आप चुप बैठ गए, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम कुछ भी लंबी चौड़ी बात करें, हवा में उड़े, उसका कोई फायदा पार्टी को मिलने वाला नहीं। मैं तो खुद अपनी बात करता हूं कि इस समय जो माहौल बना हुआ है वो लोगों में उत्साह दिखाई नहीं देता। सुनते हैं, समझते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पर बात वहीं की वहीं रुकी रहती है, आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि मन हमारा पॉजिटिव नहीं रहता, और जब तक मन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव रहेगा, इस माइंड में यदि पहले से कुछ भरा हुआ है, यहाँ बैठे हुए या वहाँ बैठे हुए हमारे मन में पहले से भरा हुआ है, तो जो ऊपर से बात आएगी वो हमारे इसमें असर नहीं करेगी। क्योंकि जब पहले से भरी हुई है, हमें पहली बात को खाली करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को साफ रखना पड़ेगा।
जब भी हम मीटिंग में चलें तो उस समय हमने क्या सुना, क्या लिखा और हमें आगे क्या सुनाना है, इस पर हमको ध्यान देना है। और देखो, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, किराए भाड़े में भी खर्च होता है। अगर उसका लाभ आपको ना मिले तो फिर पत्नी भी नाराज, परिवार के लोग भी नाराज कि हमारी मेहनत की कमाई को वैसे ही राजनीति में जाकर बर्बाद कर रहे हैं। तो उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। आपको मिलेगा तो मिशन को भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा, और यदि आपको नहीं मिला तो पार्टी को भी नहीं मिलेगा। और बुद्ध की पहली धम्मपद की गाथा है, मनोपुबग्मा धम्मो मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेत्ति चक्कंग वे बहतो पदंग। इसकी उल्टी दूसरी गाथा है, मनोपुबग्मा धम्मो मनोसेठा मनोमया मनसा च पस्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मन वेत्ति छाया वे अनपायनी। इसका अर्थ है कि हमारा जो ये मन है, ये प्रधान है, प्रधान सब धर्मों का अगुआ है, सब कर्मों का अगुआ है। अब इस मन से जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। अगर हम बुरे मन से कोई बात सोचते हैं तो दुख हमारे पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चक। और यदि हम इस मन से सच सोचते हैं, सही सोचते हैं, तो सुख हमारे साथ ऐसे चलता है जैसे मनुष्य का साथ ना छोड़ने वाली उसकी परछाया हमेशा साथ चलती है, छाया पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही बुरे कर्मों का फल मिलने में देर हो सकती है। हाँ भाई, बुरे कर्मों का फल मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अच्छे कर्म का फल मिलने में देर नहीं होती, साथ के साथ फल मिलता है। इधर अच्छा कर्म, उधर अच्छा इनाम। सजा मिलने में देर हो सकती है, लेकिन इनाम मिलने में देर नहीं होती। और जो कुछ भी हो रहा है, आपने जब से होश संभाला है और आज तक ना जाने जीवन में कितने आपके दोस्त बने, कितने दुश्मन बने, और इसी जीवन में वो दोस्त दुश्मन हो गए और दुश्मन दोस्त बन गए। तो इसी धम्मपद में दूसरी गाथा भी उन्होंने कहा है, फुट्टस लोग धम्मे ही चित्तंग यसने कंपति अशोकंग बिरजंग खेमंग एतंग मंगल मुत्तमंग। जो व्यक्ति इन 8 लोक धर्मों में, कौन से 8 लोक धर्म? सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, सम्मान अपमान। जिस व्यक्ति का इन 8 लोक धर्मों में चित्त कंपित नहीं होता, मन कंपायमान नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन शोक रहित रहता है, विरज विमल रहता है और मंगल में जीवन जीता है।
हम लोग सोच नहीं पाते। हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, खूब उनकी जयंती मनाते हैं, कांचराम साहब को भी याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। और जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक ना बाबा साहब की जयंती मनाने से कोई फायदा आपको होगा, ना बुद्ध की जयंती मनाने से फायदा। दुनिया में क्या हो रहा है हम उस पर ज्यादा सोच विचार करते हैं। वो ऐसा, उसने ये किया, उसने वो किया। कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। और जब तक तुम खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे तब तक दूसरों के बारे में सोचते रहना आपका भला होने वाला नहीं। अपने बारे में सोचो, क्या सोचना है। मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे जीना है। मृत्यु की तो कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन हम जितने दिन जिंदा रहें उतने दिन हम स्वस्थ रहें, उतने दिन टेंशन फ्री रहें, उतने दिन कठोर कर्मी बनकर जीवन जिएं, उतने दिन पॉजिटिव बनकर जीवन जिएं, नेगेटिव नहीं। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम ठीक हो तो दूसरों को ठीक रखने में आप सहयोगी बन सकते हैं। अगर तुम बेठीक हो गए तो दूसरे ठीक हो भी जाए, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं होगा। अपने जीवन को ठीक करना है। बीएसपी में हमको राजनीति ही नहीं सिखाई जाती, जीवन जीना भी सिखाया जाता है। तुमने दूसरी पार्टियों की मीटिंगों में सिगरेट, गुटखा खाते हुए पीते हुए देखे होंगे। कोई इधर थूकता है, कोई उधर थूकता है, ऑफिस में भी गंदगी। लेकिन बीएसपी का कार्यकर्ता इन व्यसनों का इस्तेमाल नहीं करता, और यदि कोई करता है तो बीएसपी का सच्चा वर्कर नहीं हो सकता। ये समझ लेना। हम झूठ बोल सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं, हम कटु बोल सकते हैं, हम ईर्ष्या कर सकते हैं, हम दूसरे की चुगली कर सकते हैं, हम व्यभिचार कर सकते हैं, किसी को पता चले या न चले। लेकिन हमारा मन हर समय, जब तक हम जिंदे रहेंगे, जब तक ये बुरी चीजें पीछा नहीं छोड़ती। 24 घंटे डर पैदा करती हैं ये चीजें। खुल ना जाए बात, देख ना ले कोई, सुन ना ले कोई, हर समय ये टेंशन में रहता है। इसलिए पहले हमको सही रहना है। और सही कब रहेंगे? जब हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन से सबक नहीं सीखते। उन्होंने कभी पाने की इच्छा नहीं की। न्याय के लिए हर समय दुख उठाए और सब उन्हें टोकते थे। अरे काहे के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तू फंस जाएगा, तू मर जाएगा, तू ये हो जाएगा। लेकिन बार बार अपने समाज के लोग बाबा साहब को धोखा देते थे, बार बार उनका अपमान करते थे।
लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब निडर होकर अपने काम पर लगे रहे। दुख तो बहुत उठाया जीवन में, चाहे स्कूल में, चाहे गांव में, चाहे लोगों के बीच बहुत बड़ा अपमान सहा उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसे वो कर गए। करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर गए। लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमको फ्री में मिला, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कष्ट नहीं उठाया। बाबा साहब ने अधिकार दिला दिए, वो भी अंग्रेजों से दिलाए। अगर अंग्रेज नहीं आते तो बाबा साहब भी कुछ नहीं कर पाते। बाबा साहब की जो अंग्रेजों की वजह से बाबा साहब को अंग्रेजों का संरक्षण मिला। उनकी ताकत का फायदा लिया बाबा साहब ने, और उन्होंने सोचा जब तक अंग्रेज हैं, जब तक मैं कुछ समाज के लिए कर सकता हूं। और उन्होंने किया, और इतना किया कि उसका लाभ 1932 से लेकर धीमी गति से बढ़ने लगा। 1980 तक उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन 80 से 2013 तक 33 साल वो गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर एक साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। और इससे आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग दिल मिला गए कि क्या हुआ। और उन्होंने कांशीराम साहब के एक नारे पर बहुत अध्ययन किया। कौन सा नारा था वो? जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने तो हवा में ही नारे लगाए थे, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उस नारे को कैच कर लिया। और उन्होंने सोचा आज नहीं तो आज के दिन ये समाज जागेगा, वोट का अर्थ समझेगा। वोट की ताकत है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसका राज होता है। तो वोट तो इनके पास ज्यादा है, 100 में से 85 वोट इनके पास है। तो आज नहीं तो कल इनका राज आ ही जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने एक आरएसएस के मेंबर को, जिसका नाम नरेंद्र मोदी, उसको बुलाया और उससे कहा कि हम तुम्हें गुजरात का सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि पहले तुम अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करोगे। उसने कहा मुझे मंजूर है। और 2000 में, 1999 के अंत में और 2000 के शुरुआत में नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया। और जनवरी 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात की विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए कि मोड़ घांची जो गुजरात की एक जाति अपर कास्ट में आती है, उसको बदलकर
ओबीसी में शामिल किया जाए। वो प्रस्ताव पास हो गया और उसको रख दिया, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलने दिया। धीरे धीरे 2013 में आकर आरएसएस ने ऐलान कर दिया कि हम मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सारे देश में ये प्रचार किया और मोदी ने भी अपने भाषण में लगातार मेरी जाति नीची है पर मेरी राजनीति नीची नहीं है, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ये हूं वो हूं। और ओबीसी के लोगों ने समझा हमारा भैया प्रधानमंत्री बनेगा। भाई, जैसे जो पालतू तीतर को पालता है, उसे अच्छा दाना खिलाता है, जंगल में ले जाके छोड़ देता है और वो जंगल में किलू किलू की आवाज लगाकर सारे जंगल के तीतरों को इकट्ठा कर लेता है। और जंगल के तीतर कहते हैं हमारा भैया आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, चलो इससे अपनी दुख भरी बात कहेंगे। और सारे जंगल के तीतर उस पालतू तीतर के पास आ जाते हैं और सब अपना रोना रोते हैं। पालतू तीतर कहता चिंता मत करो, शाम को किसी की भी समस्या बाकी नहीं रहेगी, मेरे साथ चलो। आगे आगे पालतू तीतर, पीछे पीछे जंगल के तीतर, और ऐसी जगह ले जाकर फंसाता है जहां शिकारी ने पहले से जाल फैला के तैयार रख रखा है। सारे जंगल के तीतर उस जाल में फंस जाते हैं। शिकारी शाम को पकड़ के घर लाता है और सबकी गर्दन काटता है, भोजन बना के खाता है। सारे तीतरों की समस्या हल हो गई। ठीक इसी प्रकार ये ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग जो 5-5 किलो राशन में बहक रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ रहे हैं, जो देशद्रोही, देश गद्दार या देशभक्त के कीचड़ में लपट रहे हैं, जो लोग रामनवमी के दिन मुस्लिम समाज के लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, अरे उससे पूछ के देखो कानपुर का बघेल जिसने सबसे पहले बाबरी मस्जिद में पहला हथौड़ा मारा था, उससे पूछ के देखो कि तेरे बच्चों का क्या हाल है। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है और वो चिल्ला रहा है कि हम शिकार हो गए, हम शिकार हो गए। इसी प्रकार जो रामनवमी के दिन चिल्ला रहे थे, मस्जिद के ऊपर झंडे लगा दिए आरएसएस के, ऐसे लोगों में कौन है ये? ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, कोई और नहीं है। अपर कास्ट के तो बहुत दूर से वहीं से हाथ तापते रहते हैं और आर्डर करते रहते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। और यदि आज आंख नहीं खुली और 2024 में यदि कहीं गलती से तिवारा पीएम बनता है मोदी, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई उजागर कर रहा हूं। ये जो बाबा साहब ने जीवन कुर्बान करके, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना जीवन कुर्बान करके तुमको जो ये सम्मान दिलाया है, ये बचना नहीं है। खतरा मुसलमानों से नहीं है, आरएसएस के लोगों को खतरा तुमसे है, एससी एसटी के लोगों से खतरा है। जो बुद्ध बुद्ध चिल्ला रहे हैं, इनसे खतरा है, क्योंकि बुद्ध का जो ज्ञान है वो स्वाभिमान सिखाता है, वो कुर्बानी सिखाता है, वो सच्चे कर्म सिखाता है। और उनको, आरएसएस के लोगों को सच्चा कर्म पसंद नहीं है। आज तुम्हारी क्लासों में
जो इंजीनियर का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अब पहले उनको वेद पुराण भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो वेद पुराणों में। तुम्हारी शिक्षा अवरुद्ध हो चुकी है गए काम से। 8वीं तक तो वैसे ही पढ़ाई नहीं है, और कोई फेल नहीं होता, सब पास। और 8वीं के बाद फिर शिक्षा इतनी महंगी है, और 10वीं 12वीं के बाद तो इतनी महंगी है, स्कॉलरशिप तुम्हें मिलना नहीं है। बहुत ले लिया, बहुत। तो तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। जीवन तो जिएंगे, लेकिन वही 100-200 रुपए रोज की मजदूरी पर अपमानित होकर के जिएंगे। क्योंकि पेट के लिए खाना चाहिए, और जब पेट में भूख लगती है तो मन तड़पता है, फिर वो भागता है, कहीं से भी मिल जाए, चोरी से मिल जाए, फिर जेल जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान करके इस मिशन को, आपके पास समय नहीं है। आज मार्च हो गया है, और मार्च में लोकसभा के चुनाव का प्रचार बहुत तेज गति से होगा। 12 महीने हैं, और तुम करने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। तुम तो एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हो। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। काम कहां से होगा? कुछ मिल नहीं रहा, अभी कुछ है भी नहीं, और उसी में जो है हम उलझे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं, गुस्से से लाल पीले हुए रहते हैं। जब तक तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगी, जब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे, भाईचारा नहीं बनेगा, एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करोगे, कहीं पे ये अध्यक्ष हैं तो ये कहते हैं देखूं भला कैसे कर लेंगे अध्यक्ष की, इसे हटाओ। यहीं की बात नहीं है, मुझे पूरे देश का अनुभव है, हर प्रदेश का अनुभव है, हर जिले का अनुभव है। हर जगह यही हाल हो रहा है। अभी कल मुझे दिखा रहे थे, कोई 2 आदमी कहीं के लखनऊ के गेट पे बैठे हैं, जब तक ये जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर नहीं हटेगा हम आत्मदाह करेंगे यहीं पर। अरे क्या मतलब है, ये हट भी जाए तो तेरा क्या भला होगा? क्यों हटाना चाह रहे हो? अरे तुम सही काम करना शुरू कर दो। 100 वाट का बल्ब को क्यों खत्म करना चाहते हो? 100 के बराबर में 500 का लगा दो, 100 की अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, पूरे देश में हाल बेहाल है, और रोने के अलावा कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए जिनके पास पद है वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, करने दो उन्हें अपनी जगह। जिनके पास पद नहीं है वो राजनीति को सीखें। क्या सीखें? एक पॉइंट सीख लें, शक्तिशाली आदमी सज्जन हो सकता है, क्योंकि गुंडा तो हो ही जाता है शक्तिशाली आदमी, अहंकार में आ जाता है। आज मोदी अहंकार में है तो दुनिया चिल्ला रही है अडानी मोदी भाई भाई, लेकिन उसके जबान पर एक बार भी अडानी का नाम नहीं आता, उसका जवाब नहीं देता। और बहुत सारी बात इन विपक्षियों को जवाब देगा,
90 करोड़ लोग वे जिनको फ्री में कनेक्शन मिला, जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है फ्री में, इधर उधर की बात करता है लेकिन सही बात का जवाब नहीं देता। तो ये दिखाने के लिए सज्जन है, बड़ा सीधा है, भोला भाला है, इसके मुंह से कभी नहीं निकलता। अमित शाह छोड़ रखा है, गिरिराज सिंह छोड़ रखे हैं, दूसरे और मंत्री छोड़ रखे हैं कि तुम बोलते रहो हिंदू मुस्लिम 20-80, देश गद्दार, देश वफादार, ये और बोलते रहो। मैं बहुत साधु का भेष में जो है मैं सीधा बन के रहूंगा। तो शरीफ दिखाई दे सकता है ताकत में, लेकिन ताकतवर आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता, याद रख लेना। ताकतवर आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है, और इस देश की आर्थिक समस्या बहुत बड़ी होने जा रही है। पैसा नहीं है, 5 ट्रिलियन का भारत बनाएंगे हम। 45 लाख करोड़ का बजट, उसमें से चिकित्सा, शिक्षा और एक कौन सा है वो मनरेगा, इन तीनों पर सिर्फ 50,000 करोड़ का बजट है। 44.5 लाख करोड़ का बजट, वो कहां है, क्या हो रहा उससे कुछ पता नहीं। ये शिक्षा नहीं चाहते, ये तुम में भाईचारा नहीं चाहते। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, पता नहीं दिल्ली में एक चमार सम्मेलन हो रहा कल, तालकोट स्टेडियम। हाँ, और वहीं आपस में गुथम गुत्ता, अगर अंबेडकर की तस्वीर क्यों लगा दी, क्या है वो? अज्ञानी लोग। गलती उनकी नहीं है, जब किसी को ज्ञान नहीं कराया जाता हो तो गलत काम करेगा ही। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो ज्ञानवान है, वे भाईचारा नहीं बनाते। इसलिए हमको ताकतवर बनना है, और ताकत राजनीति से मिलेगी। और जिनके पास राजनीतिक ताकत होती है, उनका परिवार, उनका समाज पर कभी जुल्म नहीं होता। आज उन लोगों की क्या हिम्मत थी मस्जिद पे आरएसएस के झंडे लगा देते, क्योंकि उनके पास ताकत है। इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर मुकाबला किया तो मुसलमान ही जेल जाएंगे। दलितों की बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार होते हैं, कोई आंदोलन नहीं होता, लेकिन इनकी किसी एक बेटी के साथ कुछ हो जाए तो बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम्हारा ध्यान ताकत की तरफ नहीं है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना। पूरे देश में यही हाल हो रहा है। उस समय गांधी ने बाबा साहब का विरोध किया, और गांधी गरीब नहीं था। गांधी के पिताजी बहुत धनवान थे, गुजरात की पोरबंदर सियासत के जाने माने व्यक्ति थे। लेकिन उसने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नंगा शरीर एक धोती में दिखाया कि मैं तो तुम्हारा ही हूं, और सब लोग जाल में फंस गए। अरे देखो ये आदमी
गरीब होकर हमारे साथ लड़ रहा है। बाबा साहब गरीब थे, लेकिन उन्होंने गुरुचांद ठाकुर से सीखकर क्या सीखा? गुरुचांद ठाकुर ने कहा कि अगर हमें राजा बनना है तो राजा जैसी पोशाक भी हमारी होनी चाहिए। ठीक इस प्रकार बाबा साहब ने सोचा कि मेरा समाज गरीब है, लेकिन मैं उसे पहनना सिखाऊंगा। इसलिए वो सूट बूट और टाई में उन्होंने जनता को संदेश दिया कि हमें ऐसा पहन करके जीवन जीना। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। और बाबा साहब ने, याद रखना, कास्ट इन इंडिया में ये लिखा था कि हिंदू धर्म में जाति जैसे जैसे ऊपर उठती है, वैसे वैसे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की जाति नीचे को घटती चली जाती है, उसका अपमान बढ़ता चला जाता है। ये जाति इस देश के अंदर जाति नहीं है। जिसके पास आ जाती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। और तुम भी सब जातियों के जाल में फंस चुके हो। कोई फंस चुका है कि हम नमो शूद्राज हैं, हम राजवंशी के पास नहीं बैठेंगे, राजवंशी नमो शूद्राज के पास नहीं बैठेंगे, वाल्मीकि जाटव के पास नहीं बैठेंगे, जाटव वाल्मीकि के पास नहीं बैठेंगे, नाई कुम्हार के पास नहीं बैठेगा, कुम्हार नाई के पास नहीं बैठेगा। और आज हर जाति अपने अपने नाम पर अपने अपने मोर्चे खोले हुए हैं, अपनी अपनी कमेटी बनाए हुए हैं। ये हमारे समाज की ये संस्था, हमारे समाज की ये संस्था, और सब ऊंचे बने हुए हैं, कोई नीचा बनने को तैयार नहीं। इसलिए आज मेरा आप लोगों से निवेदन है, भाषण वाषण तो बेकार की चीज है, मन थक चुका है। अगली साल 75 साल की उम्र हो जाएगी, रात दिन भागते भागते अब यहां तो जो है, अब ये खूब कहते हैं मुझसे कि इतना वजन क्यों लादते हो। अब मैं भी कहता हूं मजबूरी है, महीने में अगर मुझे रहना है 25 दिन, तो फिर ये सामान तो मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन हिम्मत सी टूट जाती है जब खुद करने के बाद भी मुझे 5 मिले, 50 मिले, कितने लोग मिले, कभी मैं निराश नहीं हुआ। भाषण तो 50,000 लोगों के बीच में भी दिया है, 1 लाख लोगों के बीच में भी दिया है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। चाहे उड़ीसा है, चाहे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, कहीं भी है, जितने लोग मिले उन्हीं को तुम्हारा जीवन आगे कैसे बढ़ सकता है, एक एक बिंदु पर समझाने का प्रयास किया। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता, वैसे वैसे प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई शुरू करता था। धीरे 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 हाई स्कूल तक आता था, इतने ट्रांसफर हो जाता था, फिर पढ़ाई वहीं रुक जाती थी। तो
अब मन ये कहता है कि मैं 5 लोगों को जाकर के तैयार करूं भी, तो उसके लिए मुझे कम से कम 20,000 खर्च करना पड़ेगा। अभी कहां से आएगा पैसा? लेकिन उसे भी कर दे और 5 में से 1 तैयार हो भी गया, तो रात को सोते समय तो कहता कहीं बहका तो ना रहे हैं अशोक जी? दुनिया में भगवान कोई होता तो है, कोई ना कोई तो है ही ऐसी शक्ति। दिन भर पाठ पढ़ाया, 1 जागा, वो भी सुबह को भाग गया। सारी रात रोए। अब क्योंकि शरीर में जान भी नहीं है, मैं तो विल पावर के साथ चल रहा हूं और आपके सामने मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, मैं जवान ही रहना चाहता। बहुत साफ बात है। अब मौत की तो पता नहीं कब आ जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बुढ़ा नहीं होना चाहता, मैं जवान रह करके ही मरना चाहता। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। मन नहीं था, पता नहीं क्यों खड़ा हो जाता हूं, तो फिर कुछ ना कुछ निकल ही आता है। आप सब लोग यदि बंगाल में 1993 से शुरू हुई है, 88, हाँ तो 88 से लगा लो, 12 वो और 13, 23 ये 35 साल, 35 साल में जो चले होंगे उस समय, तो 20 साल के भी चले होंगे, तो 55 तो वैसे हो गई, 60 में तो पाठा हो जाता है, 60 के बाद तो बचता नहीं कुछ। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो कम से कम जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वैसे ज्योतिर्मय सुबह मुझसे कुछ बात कह रहे थे और उनका कहना था कि अब मैं कुछ करना चाहता हूं जो मेरा जीवन बचा है, और मैं निराश होकर के जीवन नहीं काटना चाहता। ये बहुत अच्छी सोच थी, क्योंकि जाना तो है सबको एक दिन, और जब जाना है तो हम कुछ करके जाएं। जिस दिन ये पॉजिटिव सोच सबके अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन इस पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी आगे आ गई। एक बात हम कमेटी में परिवर्तन करना चाहते थे, फरवरी में ही करना चाहते थे। मार्च में शादी आ गई माननीय आकाशानंद जी की, और उसके तुरंत बाद कर्नाटक का चुनाव घोषित हो गया। उसकी वजह से हमें कुछ समय लेना पड़ रहा है। बहन जी का तो आदेश हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस पैदा हो जाए और सब लोग ये सोचकर कि जो बनाया है हम उसके साथ चलेंगे। तो मैं कर्नाटक के चुनाव के बाद माननीय अतर सिंह राव जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम तीनों बैठ करके फाइनल कर देंगे, और हर सूरत में 10 मई को चुनाव हो जाएगा कर्नाटक का, 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा, तो 14 मई को हम प्रदेश की कमेटी का गठन कर देंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया और कुछ करने का मन बनाया
जिन लोगों को बनाया जाएगा उन लोगों को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आज से लेकर जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम मिल करके सब एकजुट होकर के हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आपका मन ऐसा नहीं बना, क्योंकि मैं भी अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर प्यार पैदा हो जाए, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, एक दूसरे को सहयोग देना शुरू कर दें, तो फिर उस दिन पश्चिम बंगाल में तुम्हारी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले महीने की जो हमारी मीटिंग होगी वो 5 मई को नहीं होगी, वो 14 मई को ही होगी। ठीक है, 14 मई को मीटिंग होगी और उसी में हम घोषणा कर देंगे। आप लोगों के सबके विचार लेने के बाद और सही लोगों का चयन करना है, जो दौड़ सकते हैं, मैदान में कूद सकते हैं, जो त्याग कर सकते हैं, जो आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को दरकिनार कर सकते हैं, उन लोगों से लोहा ले सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, उन लोगों को हम तैयार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। বিস্তারিতভাবে মোটামুটি আমাদের পার্টি সম্বন্ধে আপনারা শুনলেন। তো আমি আগে বলেছি আমরা আতার সিং কেন্দ্রে বলছেন যে 14 তারিখে যেটা আমার প্রতি বছর আমরা করি, 14 সেদিন যে পারবেন সবাই শিয়ালদা 12টা বাজে পৌঁছবেন। আর জেলায় যেটা করবেন সেটা আগে থেকে জানাবেন। আর কাছাকাছি জেলা যেগুলো আছে সেগুলো কাছাকাছি জেলা এগুলো তো সবাই আসার জন্য আহ্বান করছি সবাইকে, যারা করবেন। তো কাছাকাছি জেলা কেন গরমের দিন সবাই যেতে 4টের পরে কেন আমাদের প্রোগ্রাম 2টোর পরে শেষ হয়ে যাবে। বাকি যারা জেলা আছে তারা 2টোর পরে করলে 4টের পরে করলে চলে যাবে। যেমন ধরেন নদিয়াতে আমাদের বিশালপুর আছে, ইয়ে আছে, কলিতা রায় আছে। যদি জেলা আপনারা 4টের পরে করেন, 4টের সময় পরে করেন, সেটা সবাই থাকবে। নর্থ চব্বিশ পরগনা সুকুমার বালা আছে, তো 4টের পরে করলে এরা প্রোগ্রাম ছেড়ে এসে সবাই থাকবে। আর বিভিন্ন জায়গায় যারা আছে তারা যেন সেইভাবে তাদেরকেও পাঠাবো জেলায়। তো কাছাকাছি জেলাগুলো যেগুলো আছে কাছাকাছি সেই জেলাগুলোতে পরে প্রোগ্রাম, যেমন হুগলি আছে, বর্ধমান পূর্ব আছে, নর্থ চব্বিশ, সাউথ চব্বিশ পরগনা যেমন দিলীপদা আছে, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপদা আছে, উনি আপনার পণ্ড সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট, তো পণ্ডবর্তী সমাজে দিয়ে আছে। তো এরা থাকবে। বাকি তো জেলার যারা সভাপতি আছে তারা প্রত্যেকে থাকবেন। আর 14 তারিখে সবাইকে আমরা আহ্বান করছি যাতে 12টার মধ্যে আমাদের প্রথম অনেকদের প্রোগ্রাম সেখানে আসবে। এই আশা কাঙ্ক্ষে আজকের এই সভা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় ভীম, জয় मीटिंग अगली 14